Namaskar, I am Adarsh. Welcome to Adarsh Education Society. Good morning, students. Today we are going to learn a new topic, Unit 5, that is David and Goliath. So this is a story about a young boy whose name is David. This is a story that how he defeats a giant named Goliath. Okay? So let us read the story that how David defeats the giant Goliath. Unit 5 and page number 41. David and Goliath. Activity 1. There lived a young boy named David a long time ago. He had 3 older brothers and they were all soldiers in the king's army. Now this is the story about a young boy. His name is David. He had 3 older brothers. कितने भाई थे उसे? उसके 3 बड़े भाई थे. And where they worked? They worked as a soldiers in king's army. David also wanted to be a soldier. David को भी soldier बनना था. But his father wanted him to stay at home and look after his ship. मगर डेविड के फादर क्या चाहते थे कि वो घर पे रहे और उनकी शिप का ध्यान रखे. Every day David used to take his father's ship into the hills. While the ship were grazing, he looked for flat, round stones along the river bank. David रोज उनकी शिप को ग्रेजिंग चराने के लिए, ग्रास ईटिंग उसके लिए लेकर जाता था. तो जब ships graze करती थी, meanwhile the ships were grazing, what did David do? तब तक डेविड क्या करता था? वो राउंड और फ्लैट स्टोन्स ढूंढता था. कहाँ से? along the river bank के पास से वो फ्लैट और राउंड स्टोन्स ढूंढता था. And put them in his bag. Sometimes a hungry lion or an angry bear come to kill the ship, but David was not afraid. कभी कभार क्या होता था कि कोई लायन या बेर वहाँ जंगल से आ जाते थे. क्यों? शिप को खाने के लिए. तो डेविड क्या करता था? डेविड उनका डट के सामना करता था. He was not afraid of them. डेविड उनसे डरता नहीं था. He used to take a stone from his bag and put it in his sling. Sling क्या होता है? एक चाबुक जैसा वेपन. एक चाबुक जैसा वेपन. तो डेविड क्या करता था? उस स्लिंग में वो स्टोन जो वो कलेक्ट करता था, वो स्टोन्स, फ्लैट एंड राउंड स्टोन्स जो वो ढूंढता था, वो स्टोन्स वो स्लिंग में डालता था. He used to brandish the sling in a circle above the head and stone flew from it. तो वो क्या करता था? उस स्टोन से वो हवा में ऐसे हिलाता था. पहले स्लिंग में पत्थर डालता था, फिर हवा में ऐसे घुमाता था. इतना जोर से घुमाता था कि जब वो फिर उसे छोड़े तो पत्थर बहुत दूर जाके कहीं गिरता है. Through the air and hit the wild beast between the eyes and kill it. तो वो उसका निशाना पक्का था. जब भी वो ऐसे स्लिंग हवा में ऐसे वेव करके जब वो पत्थर डालता था तो वो बीस्ट के बीचों बीच में लगता था और इससे बीस्ट मर जाते हैं. One day David's father called him. He told him that their enemies, the Philistines, were marching into Israel. He said, "Leave the ship, go and find your brothers in the king's army. Give them this bags of flour and this letters before they go to
Now what happened one day? David's father called David. डेविड के फादर ने डेविड को बुलाया. क्यों बुलाया? क्योंकि उनके एनिमीज जो है फिलिस्टाइंस, दूसरे देश के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया था. तो उनके फादर ने, डेविड के फादर ने डेविड को बुलाया और कहा कि तुम ये शिप विप सब छोड़ो एंड गो टू योर ब्रदर, अपने भाइयों के पास जाओ और उन्हें क्या कीजिए, एंड गिव देम a bag of flour and some letters. फ्लोर यानी आटा. तो उन्हें ये आटे की बैग्स है और कुछ लेटर्स है, ये उन्हें पहुंचा के आओ. एक्टिविटी 2. लुक एट द पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी above. So this we have finished our part 1. Some key words are being given here. The first one is graze. What is graze? To eat grass in fields. Brandished, to wave a weapon. हवा में ऐसे कुछ हिलाना, उसे क्या कहते हैं? Brandish. Sling, a kind of weapon with which stones are thrown to enemies. कुछ ऐसा weapon जिससे कि हम stones throw कर सके. March, a walk of soldiers with same speed and movement. जो सैनिक जो एक साथ चलकर, उनकी स्पीड भी सेम रहती है, उनके मूवमेंट भी सेम रहते हैं. तो जब वो ऐसे चलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मार्चिंग. ओके, सो दिस वी हैव फिनिश्ड आवर पार्ट 1. नाउ वी विल सी एक्टिविटी 2. Look at the first paragraph of the story above. Find the word brandished. Can you guess its meaning? Brandish. Brandish मतलब क्या है? To wave a weapon. Weapon को हिलाना. Brandishing is an action. ये क्या है जो हम हिलाते हैं? वो एक action है. Discuss with your friend what it would be. Draw a picture of David brandishing the sling in a circle above his head. तो आपको क्या करना है? डेविड का एक पिक्चर बनाना है. यहाँ पे पीछे आपको डेविड का एक पिक्चर बनाना है जिसमें वो अपने स्लिंग को हवा में वेव कर रहा है. ऐसा एक पिक्चर आपको बनाना है. Now next, activity 3. Given below is the story of Radha. Work with a friend. Find words that will meaningfully help fill the gaps in the story below. यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स दी गई है, वहाँ पे हमें fill up करना है. Radha dash to become a lawyer. राधा को लॉयर बनना था, इसलिए हम यहाँ पे बीच में क्या डालेंगे? Wanted. Radha wanted to become a lawyer. क्या लिखेंगे हम? Radha wanted to become a lawyer. Then the next is, but everyone thought she was a fool. She was a fool. Some students made fun of her all the time. यहाँ पे क्या बोला गया है कि राधा को क्या बनना था? लॉयर बनना था. मगर सब लोग क्या सोचते थे? बट एवरीवन थॉट दैट शी वाज फुल. सब लोग यही सोचते थे कि राधा क्या है? शी इज अ फुल. वो बेवकूफ लड़की है. सम स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर ऑल द टाइम. तो सब लोग उसका मजाक बनाते रहते थे. नेक्स्ट, बट राधा नेवर सेड अ वर्ड टू एनी ऑफ देम. बट राधा नेवर सेड a word to any one of them. मगर राधा ने कभी किसी को भी कुछ भी नहीं कहा. One day a new teacher
came to her school. One day a new teacher came to her school. एक दिन एक नए टीचर आए उनके स्कूल में. She said the students, don't underestimate anyone. तो जो नई टीचर आई थी उन्होंने सबसे क्या कहा? उन्होंने कहा don't underestimate anyone. किसी को भी नीचा मत समझो कि इसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो. सो शी सेड द स्टूडेंट्स. अगेन सेड विल कम हियर. डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन. इवन अ स्मॉल पर्सन इज केपेबल ऑफ ग्रेटनेस. एक छोटा सा आदमी भी बहुत कुछ बड़ा कर सकता है. सडनली राधा वॉज फिल्ड विथ करेज. टीचर की ऐसी बातें सुनकर राधा में एक अलग ही हिम्मत आ गई. शी मेड अ प्रॉमिस टू हरसेल्फ. शी मेड अ प्रॉमिस टू हरसेल्फ. उसने खुद से एक वादा किया. I will never be afraid. मैं कभी भी किसी से भी नहीं डरूंगी. She went to the principal's office. She went to the principal's office and complained against those students. फिर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और जो स्टूडेंट्स उसे टीज करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसने उन स्टूडेंट्स की कंप्लेंट प्रिंसिपल से की. द प्रिंसिपल पनिश्ड देम एंड दे नेवर मेड फन ऑफ हर अगेन. मेड फन ऑफ हर अगेन. तो प्रिंसिपल ने उन बच्चों को पनिश किया और फिर वो बच्चे फिर कभी राधा को परेशान नहीं करते थे, कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाते थे. एक्टिविटी 4. नाउ शेयर योर आंसर्स विद अनदर पेयर. चेक इफ योर आंसर्स मैच देयर आंसर्स. ये हमने आंसर्स अपने खुद से लिखने हैं, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चेक करने हैं वेदर आवर आंसर्स आर राइट और नॉट, वेदर दे आर प्रॉपर और not. Okay, thank you students. Thank you for joining us.